السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں قرآن پاک کی سورۃ نوح، جس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کرتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نوح، اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں، تو سنیے۔ یعنی ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 71ویں سورت ہے اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں شروع سے لے کر آخر تک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کی قوم بہت سے بدعمالیوں میں مبتلا تھی، جس کی چڑ یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے 5 بت بہت زیادہ مشہور تھے، جن کے نام اس سورت میں بتائے گئے ہیں کہ اصل میں بتوں کی پوجا انہی سے شروع ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ یہ اپنے بعض لوگوں کو سب سے بڑا مانتے تھے، یعنی ان کا احترام ان کو بڑا سمجھتے تھے اور ان کے حد سے زیادہ تعظیم اور توقیر کرتے تھے۔ جب یہ مر گئے تو انہوں نے ان کی یادگاریں قائم کر کے ان کی تعظیم شروع کر دی، یعنی ان کے بت بنا لیے انہوں نے۔ رفتہ رفتہ شیطان نے انہیں سمجھایا کہ جو تمہارا کوئی بڑا پیر مر جائے تو اس کا پتھر کا مجسمہ بنا لو اور اس کی ویسے ہی تعظیم کرو جیسے تم ان کی زندگی کے وقت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سخت گناہ ہے اور ان کے رفتہ رفتہ یہی مجسمے ان کے معبود بن گئے اور وہ اللہ کو بالکل بھلا بیٹھے۔ انہی لوگوں سے ذات پات کی بنیاد پڑی اور یہ بت پرستی کا لازمی نتیجہ تھا، یعنی بت پرستی کا یہیں سے شروع ہوئی۔ آدمی کے اونچے نیچے درجے مقرر ہو گئے اور وہ مرتبہ کے اونچ نیچ کے وبا پھیل گئی۔ بتوں کی پوجا اور ذات پات کی تفریق ان لوگوں سے شروع ہو کر دنیا میں دور دور تک پھیلی۔ مصر، عراق، ہندوستان وغیرہ سب جگہ اس کا رواج ہو گیا اور آج بھی یہی دونوں ہفتے دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور باوجود اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کے دنیا ان کی گرفت سے پورے طور سے نہیں چھوٹی اور ان کی شکلیں بدلتی رہی، مگر اصل ہر طرح قائم رہی۔ تو ناظرین، اس صورت میں بھی یہی بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا مت کرو اور ہر آدمی کی عزت اس کے مرتبے کے مطابق برقرار رکھو، مگر حد سے آگے مت جاؤ، مت بڑھو۔ جب ان کی قوم نے اس بات کی نہ سنی، یعنی ان کی بات نہ سنی، تو انہوں نے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں فریاد کی اور عرض کیا کہ میں نے ہر طرح انہیں سمجھایا ہے اپنی قوم کو، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ پھلی، یعنی یہ اپنے بتوں ہی پر اڑے رہے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی اور اللہ سے التجا کی، گویا کہ یہ لوگ دنیا میں اس طرح رہتے چلے گئے تو دنیا میں سوا شر و فساد کے اور کچھ نہ دکھائی دے گا۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیج کر سب کو غرق کر دیا۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور تھوڑے سے ان کے ماننے والے اور لوگ تھے، اور طوفان کے بعد آدمی اور جانور کی نسل انہی سے چلی جو بچ رہے تھے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے میں نے خلاصہ پیش کیا ہے اور قرآن آیت کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ
कौमू का मिन कब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा, और इससे पहले कि पहुंचे इन पर दर्दनाक अजाब। काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, बोला ए मेरी कौम, मैं तुमको सुनाता हूँ खोल कर, अनेबुदुल्लाह कि अल्लाह की बंदगी करो, वत्तकू व अतीउल्लाह व अतीकुम अतीऊना, अल्लाह से डरो और इससे डरो और मेरा कहना मानो। यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख्खिरुकुम, ताकि वो बख्शे तुमको कुछ गुनाह तुम्हारे और ढील दे तुम्हें, और युअख्खिरुकुम इला अजल मुसम्मा, और तुम्हें ढील दे तुम्हें एक मुकर्रर वादे तक के लिए, यानी एक मुकर्रर वक्त क़यामत तक के लिए। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा, और जब आ पहुंचेगा वो दिन जिसका अल्लाह ने जाला युअख्खर, जिनका वादा किया तो वो पीछे ना हटेगा। लो कुंतुम तालमून, काश तुम समझते। तो नाज़रीन यहाँ पे बयान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान है खुद नबी थे, और उनकी औलाद ने उनकी हदायतों के मुताबिक दुनिया में रहना सहना अख्तियार किया। आबादी बढ़ी तो उनके बेटों में से काबिल ने अपने भाई को हबील को मार डाला। तो यहाँ पे है कि और ये पहला गुनाह था जो इंसान से सरजद हुआ। इसके बाद आबादी बढ़ती गई और गुनाह भी साथ साथ बढ़ते रहे। लोगों के समझाने को अल्लाह के नबी आते रहे। तो नाज़रीन यहाँ पे ये बताना इसलिए मकसूद है ताकि एक जमाना आया जिसमें लोग अल्लाह को भुला बैठे और अपने बुजुर्गों ही को सब कुछ समझने लगे। जब वो बुजुर्ग ना रहे तो उनके बुत बना लिए ताकि उनकी याद ताज़ा रहे। कुछ दिन बाद बुजुर्गों को तो भूल भाल गए और बुतों ही को अपना रब और महबूद बना बैठे। नाज़रीन ये जमाना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त का था। इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत नूह को अपना रसूल बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि अपनी कौम को समझा और कहो कि इनसे पहले कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो समझ जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से डरो और इसके अजाब से डरो। मैं जो कहूँ वो करो, इससे उम्मीद है कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाए और दुनिया में अजाब से बच जाओगे, और तुम्हें और तुम्हारे बाद इंसानों को उनके मुकर्रर मौत के वक्त तक जीने दिया जाएगा। वरना अगर अल्लाह के वादों के पूरा होने का वक्त आ गया और तुम गफलत में पड़े रहे चूंकि तो फिर जरा मोहलत ना मिलेगी और नाफरमानी की हालत में मारे जाओगे। काश तुम इतनी बात समझ लो। तो नाज़रीन अब मैं कुरान पाक की आयत नंबर 1 से 4 तक का तर्जुमा तफसीर बयान किया है। अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत नूह इसकी आयत नंबर 5 से लेकर 9 तक का तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। अर्ज़ हाल, यानी यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम का क्या हाल था और वो कैसे थे। काला रब्बी इन्नी दऊतु कौमी लैलन, बोला ए रब मैं बुलाता रहा, यानी अपनी कौम के बारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बता रहे हैं इन आयत के जरिए कि मैं अपनी कौम को बुलाता रहा, अपने कौम को रात यानी कौमी लैलन व नहार, रात को और दिन को। फलम यजीद दुआई इल्ला, फिर वो मेरे बुलाने से और ज्यादा फरारन और ज्यादा भागने लगे। वइन्नी कुल्लमा दऊतुहुम लियगफिर लहुम, और मैंने जब कभी उन्हें बुलाया ताकि तुम उन्हें बख्शे, जालू असहाबियहुम फी आज़ानिहिम, तो वो लोग डालने लगे उंगलियां अपने कानों में, यानी उन्होंने कानों में उंगलियां डाल ली और मेरी एक न सुनी। वस्तगशु, और लिपटने लगे अपने सयाबहुम और कपड़े, और असरु और जिद के, वस्तकबारा और गुरूर किया और बड़ा गुरूर किया, यानी वो बहुत मगरूर हो गए। सुम्मा इन्नी दऊतुहुम जिहार, फिर मैंने उन्हें बरमला बुलाया, यानी मैंने आहिस्ता आहिस्ता बुलाया, उन्हें प्यार से बुलाया। सुम्मा इन्नी आलनतु लबहुम, फिर मैंने उनसे खोल कर कहा, यानी बरमला भी उन्हें समझाया और खोल कर कहा और चुपके से। लहुम असररतुम लहुम
उसरारुन इसरारुन, और चुपके से छुप कर भी कहा, यानी हर तरीके से मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पुरानी आयत के जरिए बता रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन उनके कान पर जूं तक न चली। इस कान सुनाए, उस कान उड़ा दिया, यानी इधर सुना उधर भुला दिया। इसकी एक बात ये भी ना मानी। आखिर जब नूह अलैहिस्सलाम समझाते समझाते थक गए और समझाने का कुछ असर ना देखा, तो बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ए मेरे रब, मैंने इनको रात को भी समझाया, दिन को भी, कि आओ मेरी बात सुनो, मगर ये मेरे बुलाने से और भी दूर चले गए और ज्यादा मुझसे दूर भागे और मेरी बात तक सुनना गवारा ना किया। तो अब यहाँ पे ये इनके बारे में हो रहा है, जब बुलाया जब ही अपने कानों में उंगलियां दे ली, यानी जब उन्हें हिदायत देनी शुरू की वो कानों में उंगलियां दे लेते थे और अपने इर्द गिर्द कपड़े लपेट कर इनमें घुस जाते थे, छुप जाते थे, ताकि किसी तरह मेरे आवाज उनके कान तक ना पहुंचे, और अपने बुरे कामों पर और भी ज्यादा अड़ गए और दिल में ठान ली कि हम तो यही करेंगे जो हमारे दिल में आएगा, जो कर रहे हैं हमारे बड़े, जो और अकड़ गए और हमसे बड़ा कौन है जो हमें समझाए। तो वो धर्म हो गए, सबसे बड़ी तो ये हम हैं, यानी सबसे बड़े हम ही हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि फिर भी मैंने अपना काम ना छोड़ा और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की, उन्हें पुकार कर समझाया, मजमा में भी इनसे चीख कर भी कहा और अलहदा भी साफ अल्फाज में उन्हें समझाया और इशारे कनाइयों में भी उन्हें समझाया, अपना मतलब वाज़ह किया। गर्ज समझाने का कोई उन पर तरीका ना समझ में ना आया, कोई तरीका कारआमद साबित ना हुआ, लेकिन और उन्होंने अपना तरीका ना छोड़ा। अब कुरान पाक की यानी सूरत नूह इसकी आयत नंबर 10 से 15 तक आपकी खिदमत में तर्जुमा और तफसीर पेश कर रही हूँ, तवज्जो से और गौर से सुने। इसको उन्वान दिया है क्या क्या समझाया, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या क्या समझाया, कैसे समझाया। फकुल्तु तगफिरू रब्बकुम, तो मैंने कहा अपने रब से गुनाह बख्शवाओ, बेशक वो है बख्शने वाला, इन्नहु काना गफ्फारन, यानी बेशक वो बख्शने वाला है। यूसी लिस्समाउ अलैकुम मिदारारा, यानी छोड़ दे तुम पर आसमान की धारें, व युमदिदकुम, और बढ़ा देगा तुम्हें, बिअमवालिन व बनीना, माल और बेटों से, व यजअल लकुम जन्नतिन, और बना देगा तुम्हारे लिए बाग व यजअल लकुम अनहारा, और बना देगा बाग और बना देगा तुम्हारे लिए नहरें। तो नाज़रीन, मालाकुम ला तरजूना, क्या हुआ तुम्हें क्यों नहीं उम्मीद रखते, लिल्लाहि वक्कारा, कि अल्लाह के बड़ाई से, यानी अल्लाह की बड़ाई पर तुम क्यों नहीं उनकी अजमत पर यकीन रखते। वक़द खलक़कुम अतवारन, और इसी ने बनाया तुम्हें तरह तरह से। अलम तरा कैफा खलक़ल्लाहु, तो क्या तुमने देखा नहीं कैसे बनाए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। सबा समावाती, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7 आसमान, तहबतह तिबाकन तहबतह बनाए अल्लाह ताला ने 7 आसमान। वजालल कमर फीहिन्ना नूरन, और रखा इनमें चांद को रोशनी। तो नाज़रीन यहाँ गौर से सुने कि अल्लाह ताला ने कैसे बनाया और क्या क्या बनाया, किस किस तरीके से उनको समझाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कुदरतों को याद दिला कर यहाँ पे है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज कर रहे हैं कि मैंने इन्हें हर तरह समझाया और उनसे कहा कि तुम्हारे करतूत तो अब तक बुरे रहे हैं और उनका बुरा नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इससे नजात की कोई सूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरी सुनो और मेरे बताए हुए तरीके पर चलो तो अपने आप को इससे बचा सकते हो। चनाचा मैंने इनसे कहा कि अपने मालिक और अपने रब की तरफ रजू करो और इससे कहो कि ए हमारे रब, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे गुनाह माफ कर दे। वो रहीम अपने बंदों के जो इसकी तरफ झुके गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि वो गुनाह बख्शने वाला है। वो तुम्हारे पिछले
कसूर माफ कर देगा और अपनी रहमत से आसमान से तुम्हारे ऊपर जोर की बारिश बरसाएगा, यानी रहमतें नाजिल फरमाएगा, जिससे जमीन सराब हो जाएगी और खुश्क साली खत्म हो जाएगी और जल थल एक बहानेगा, यानी एक बहाएगा, नदी नाले तालाब खूब भर जाएंगे और कहत से निजात मिलेगी, क्योंकि उस कौम पर कहत भी नाजिल हो गया था। और पैदावार खूब होगी, मालदार हो जाओगे, तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, यानी बीमारी भी फैल गई थी और बीमार भी ठीक हो जाओगे, और बेटे बहुत से पैदा होने लगेंगे। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? उन्होंने हर तरीके से उन्हें लालच देने की भी कोशिश की और उन्हें अल्लाह ताला की मखलूक को, अल्लाह ताला की कुदरतों को के जरिए भी उन्हें समझाने की कोशिश की। आखिर तुम्हें हो क्या गया है कि तुम अल्लाह की अजमत और बड़ाई के कायल नहीं होते और इसके बाद दुनिया और आखिरत की नेमतें नहीं समेटते। तुम्हें इसी ने तो पैदा किया है और मुख्तलिफ हालात में पाला है, तुम्हें सूझता नहीं। अल्लाह ने एक दूसरे के ऊपर नीचे 7 आसमान बना दिए हैं और चांद की रोशनी का जरिया बनाया है। तो नाज़रीन, मैंने आयत नंबर 15 तक आपके सामने सूरत नूह का तर्जुमा और तफसीर बयान कर दिया है। इससे आगे मैं आपके सामने आगे वाला हिस्सा नेक्स्ट दर्स में पेश करूंगी। इस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको जो है इन आयात के मुताबिक हदायत हासिल फरमाए, ताकि हम दुनियावी जिंदगी जो है कुरानी आयात के मुताबिक गुजारें और इनसे साबका हालात से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से सबक हासिल करें। आमीन सुम्मा आमीन।